everyone. In last two videos of my last touches, we did the background and historical background and what is dramatic monologue. Today in this video we start reading the poem My Last Touches by Robert Browning. The epigraph is Ferrara, and we have already discussed that this epigraph Ferrara shows indicates that the speaker is Alfonso II d'Asti, who was the Duke of Ferrara in 16th century, and his first wife is already dead. So as for recalling or revise, here the situation is that the first wife, that means the last Duchess of the Duke of Ferrara, is dead, and her painting is still on the wall. He is to be engaged with his second wife, and the relatives of the second wife has arrived. They may be or must be sitting on the first floor, and the emissary, who must be Nicholas Madridge, that we discussed in the last video, he is the second person in this conversation, and the Duke is making Nicholas Madridge visit his palace. So ये पोएम जो है माई लास्ट टचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसका एपिग्राफ जो है वो है फरारा, जो कि दिखाता है कि ये स्पीकर जो है ड्यूक ऑफ फरारा है. और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लास्ट इनकी जो डचेस है, मतलब लास्ट वाइफ जो है, शी इज़ डेड नाउ, और उसकी पेंटिंग अभी तक दीवार में लगी हुई है जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है. अभी इनकी दूसरी शादी के लिए रिलेटिव्स जो हैं आए हुए हैं और वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और इनका जो इमिशियरी है, जो निकोलस मैड्रिज होना चाहिए, जो कि इस पोएम में सेकंड पर्सन है जिसके साथ ड्यूक ऑफ फरारा कॉन्वर्सेशन में है, उसको ये जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ फरारा, वो अपना पैलेस घुमा रहा है. और घुमाते हुए वो अपने लास्ट डचेस की पेंटिंग के पास पहुंचता है और उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करता है. और उस पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के सिचुएशन में वो अपनी वाइफ के नेचर को डिस्क्राइब करता है, और हालांकि वो उसको क्रिटिसाइज़ करता है, बट उसके कॉन्वर्सेशन से हमें पता लगेगा कि इट इज़ ड्यूक, जो कि हाउटी है, जो कि घमंडी है, जो कि पॉजिटिव है, ना कि उसकी डेड वाइफ. सो ड्यूरिंग द visit of the palace, Nicholas Madrius is told by the speaker, the Duke of Ferrara, about his last wife, and though when he describes his last duchess, he wants to show her as stupid, as naive, as too much condescending, but we get to know that it is Duke who is haughty, while his wife was actually naive and a good-hearted woman. So here starts the poem. That's my last duchess painted on the wall. Here is the painting of his last duchess, that the painting is on the wall, looking as if she were alive. ऐसे दिख रही है, looking as if she were alive. So the two lines are, that's my last duchess painted on the wall. ये मेरी last duchess है, ये मेरी last duchess है, and painted on the wall. It means on the wall there is her painting. Looking ऐसे दिख रही है as if she were alive. ये पेंटिंग इतनी लाइवली है कि इसमें ड्यूचेस जो है अलाइव नज़र आ रही है. I call, here I is Duke of Ferrara. I call that piece a wonder now. What piece? The piece of painting. So Duke of Ferrara says that I call that piece a wonder now. Now by design he gives, in order to give the price value or the brand value to the painting, he gives the name Fra Pendloff. So here Fra Pendloff is a painter who has painted the painting of the last Duchess of Ferrara, but this Fra Pendloff, the painter, is a fictional one. He is not the real painter or any historical painter. So he says, Ferrara says, that's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Fra Pendloff's hands worked busily a day. Fra Pendloff के हाथ ने एक दिन पूरे काम किया, and the assistants
और देखो वो वहाँ खड़ी है. इट मीन्स फ्रा पेंडलॉफ वर्कड a whole day. He made the painting, and after the effort of Fra Pendloff, the effort of whole day of Fra Pendloff, here stands the painting of his wife. So Fra Pendloff's hands worked busily a day, and there she stands. Who stands? The last Duchess of the Duke of Ferrara. So where does she stand? She stands in the painting. So there must be the painting of the last Duchess where she is standing. And now, so let's revise. So Ferrara, Duke of Ferrara, is addressing to Nicholas Madrius, and he asks him, that's showing him the painting of his last Duchess. He says, that's my last Duchess painted on the wall, looking as if she were alive. मेरी लास्ट डचेस का पेंटिंग है दीवार पे और ऐसे दिख रही जैसे वो जिंदा हो. आई कॉल दैट पीस अ वंडर नाउ. मैं अब इस पीस ऑफ पेंटिंग को आश्चर्य, वंडर बुलाता हूँ. फ्रा पेंडलॉफ्स हैंड्स वर्क बिजली अ डे. फ्रा पेंडलॉफ ने एक पूरे दिन भर मेहनत किया, एंड देयर शी स्टैंड्स. और देखो यहाँ पे ये पेंटिंग खड़ी है. नाउ नेक्स्ट लाइन इज हियर ही इज आस्किंग टू द इमिशियरी. वो इमिशियरी को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर. विल इट प्लीज यू, क्या आप देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट एंड लुक एट हर? सो हु इज यू? यू इज द सेकेंड पर्सन, निकोलस मैड्रोस, जो कि ड्यूक की सेकंड शादी के लिए इमिशियरी के तौर पर आया है. यू इज probably Nicholas Madrius, who is the emissary who has come to negotiate for the second bride of, prospective bride of the Duke of Ferrara. So he asked him, will it please you sit and look at her? So who is her? Her is the painting of the last Duchess. So he says, would you please, would you like to sit and look at the painting of my last Duchess? Now, here Duke of Ferrara, I is Duke of Ferrara. He says, I said Fra Pendloff by design. मैंने Fra Pendloff जानबूझकर नाम बोला है. See, here we find the haughty, घमंडी, proud, arrogant nature of the Duke of Ferrara when he says, I said Fra Pendloff by design for never read strangers like you that pictured countenance. मैंने Fra Pendloff का नाम जानबूझ के बोला है for never, क्योंकि कभी भी रीड नहीं कर सकते strangers like you, तुम्हारे जैसे stranger जो है इस पिक्चर के काउंटेनेंस को, इस पिक्चर में, काउंटेनेंस मीन्स फेस, इस पिक्चर में जो फेस है मेरी लास्ट डचेस का और उस पर जो एक्सप्रेशन है उसको तुम जैसा स्ट्रेंजर नहीं समझ सकता है. तो ही इज़ बी लिटलिंग द पर्सन हु इज़ विथ हिम, telling him inferior kind of creature who could not understand the pictured countenance. He said that I said Fra Pendloff by design. So why he says I said Fra Pendloff by design? That Fra Pendloff is such a great painter who can create such kind of painting, and the common people like the emissary cannot understand this picture. So he says Fra Pendloff by design for never read strangers like you that pictured countenance, the depth, वो गहराई, and passion, वो पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस. ये जो अर्नेस्ट ग्लांस है पिक्चर में, कौन सी पिक्चर? ड्यूचेस की पिक्चर. उसमें जो डेप्थ है, पैसन है, जो कि फ्रा पेंडलॉफ जैसे पेंटर ही क्रिएट कर सकते थे, ग्रेट पेंटर क्रिएट कर सकते थे, उसको तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर जो है. तो स्ट्रेंजर किसके लिए? ही इज़ ए स्ट्रेंजर टू आर्ट एंड ही इज़ ए स्ट्रेंजर टू द ड्यूचेस. तो यहाँ पे वो स्ट्रेंजर सिर्फ ड्यूचेस को लेकर के नहीं है, यहाँ पे किसके लिए स्ट्रेंजर है? तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर नहीं समझ सकते. इट मीन्स हियर ही ऑल्सो इज शोइंग द क्लास, दैट ही बीइंग द ड्यूक हैज़ द क्लास टू अंडरस्टैंड द आर्ट, while Nicholas Madrius as being as belonging to the inferior class do not have the capacity to appreciate that painting. So next he says, I said Fra Pendloff by design for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of that its earnest glance, but to myself they turn. Stranger जो है मेरे तरफ ही टर्न करते हैं. अभी देखिए क्यों टर्न करते हैं, क्योंकि now the next thing is in bracket, क्योंकि he says that since, क्योंकि none puts by, कोई नहीं हटा सकता है, the curtain, वो पर्दा, I have drawn for you, बट आई, सिर्फ मैं ही वो पर्दा हटा सकता हूँ जो मेरी लास्ट डचेस के पेंटिंग के ऊपर लगा हुआ है. सो यू कैन बाय लास्ट डचेस इज डेड.
Duke of Ferrara's last duchess is dead, and even after her death, he has put her under the curtain. Even her picture is put under the curtain, and he is so possessive about her that he feels that the curtain, the right to draw the curtain, also belongs to him only. So this shows the nature of the overbearing or over possessive nature of the Duke of Ferrara. So he says, let's repeat the line. I set Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of his earnest glance. But to myself they turn, since none put by the curtain I have drawn for you but I. And seemed as they would ask me if they durst. अभी देखिए, again he says कि और ऐसा लगता है, and seemed, one minute, and seemed, और ऐसा प्रतीत होता है, as they could ask me, the visitors who saw the picture of the duchess earlier, they would ask from the duke if they durst, अगर उनकी हिम्मत होती तो पूछ सकते थे, how such glance came there, ऐसी नज़र, ऐसा ग्लांस ड्यूचेस के फेस पर कैसे आया. तो पहला तो ये बोल रहा है कि इट इज़ अ वर्क ऑफ डेयर, दैट इवन नो बडी डेयर्स टू आस्क अबाउट इवन द लेवल ऑफ द कंडीशन ऑफ द ग्लांस और एनीथिंग अबाउट द लास्ट डचेस टू हिम. इसीलिए ही इज़ प्रिसाइजली पॉइंटिंग दिस पार्ट दैट इफ़ दे डस्ट, अगर लोगों की हिम्मत होती तो पूछता कि इस पेंटिंग में ऐसी ग्लांस कहाँ से आई. तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो सेकंड पर्सन का भी कॉन्वर्सेशन होता है वो हमें स्पीकर के थ्रू ही पता चलता है, वो पोइटिक पर्सोना के थ्रू ही पता चलता है. तो यहाँ पे पोइटिक पर्सोना जो है, पर्सोना से सेकंड पर्सन ने क्वेश्चन पूछा है, ऑलरेडी पूछा है कि पिक्चर में ऐसा ग्लांस कहाँ से आया. इसीलिए यहाँ पर जवाब है जिसमें ये बोल रहे हैं कि सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस सर. इसीलिए आप पहले इंसान नहीं हैं जो ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं. कौन सा सवाल पूछ रहे हैं कि ड्यूचेस के फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ से आया. अब नाउ ही एक्सप्लेनिंग कि ड्यूचेस के फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ से आया. नाउ ही एक्सप्लेन्स, ड्यूक ऑफ फरारा एक्सप्लेन्स दैट हाउ कम दैट द ड्यूचेस हैज़ सच ग्लांस एंड सच एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. सो ही सेज सर, and from here onward we get to know how he picturizes his wife and how he was a great critic of his wife. So he says, sir, that was not a husband's presence only called that spot of joy into Duchess' cheek. Sir, it was not only my presence. So there is a picture of Duchess in which there is a spot of joy or there is a happiness pictured on the face of the last duchess. लास्ट डचेस के पिक्चर के ऊपर एक बहुत खुशनुमा चेहरा होगा जिसमें स्पॉट ऑफ जॉय उसके फेस पे दिख रहा होगा. और यहाँ पे उसके हस्बैंड कहते हैं कि सर दैट वाज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली. सिर्फ अपने हस्बैंड के प्रेजेंस में वो इतना खुश नहीं होती थी. कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन ड्यूचेस चीक्स. वो ड्यूचेस, मेरी जो लास्ट ड्यूचेस थी, वो सिर्फ मेरे प्रेजेंस में इतनी खुश नहीं होती थी. परहैप्स फ्रा पैंडलॉफ चांस टू से, हो सकता है पेंटिंग बनाते बनाते फ्रा पैंडलॉफ चांस टू से बोल दिया होगा कि हर मेंटल, देखिए यहाँ पे लाइन किसकी है, फ्रा पैंडलॉफ की, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा में है. और उसको कॉट कौन कर रहे हैं, उसको कॉट कर रहे हैं उन लास्ट डचेस के हस्बैंड, मतलब ड्यूक ऑफ फरारा. ये दो लाइन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो किसकी है, वो है फ्रा पैंडलॉफ की. फ्रा पैंडलॉफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट ऑलरेडी अ फिक्शनल राइटर, सॉरी फिक्शनल पेंटर. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हो सकता है ये जो इतना खुशी जो ड्यूचेस के चेहरे पर आई है वो मेरे कारण नहीं आई है, सिर्फ मेरे कारण नहीं आती. हो सकता है पेंटिंग बनाते बनाते फ्रा पैंडलॉफ ने बोल दिया होगा, कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया होगा और कॉम्प्लीमेंट से ड्यूचेस खुश हो गई. तो क्या कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, हाँ मेंटल क्या होता है, हेड गियर, मेंटल एप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि लेडी आपका जो हेड गियर है ना वो आपके रिस्ट तक आ रहा है. और हो सकता है कॉम्प्लीमेंट कर दिया होगा क्या, कि पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट, कि पेंट जो है आपके थ्रॉट में जो हाफ ब्लश है, हाफ ब्लशिंग का जो शेड है आपके थ्रॉट पे, दैट डाइज अलॉन्ग योर थ्रॉट, ऐसा जो है पेंट कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था. तो वो उसने बोला होगा कि ये जो है आपका नेचुरल है. तो बस ऐसी बात सुन करके
ड्यूचेस जो है वो खुश हो जाती थी, और अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड कि दैट वाज इनफ, कि ऐसा अगर कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो दैट वाज इनफ. क्या कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रेस्ट टू मच, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट, हाफ ब्लस दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट. तो इनका कहना है कि अगर ऐसा कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो सच स्टफ वाज कटसी, शी थॉट. अब ड्यूक का कंप्लेन ये है कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरी ड्यूचेस के लिए ये बात कटसी थी. तो ये ड्यूक क्या चाहते हैं, बिकॉज आगे हम लोग देखेंगे, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट 900 ईयर्स ओल्ड नेम. तो ड्यूक क्या चाहते हैं कि जो ड्यूचेस है वो इतनी स्टिफ रहे कि उसके हस्बैंड को छोड़कर उसको कोई कॉम्प्लीमेंट ना कर पाए और कोई कटसी में कोई बात ना कह पाए. तो ये बोल रहे कि अगर ऐसा तारीफ भी कर दी तो मेरी वाइफ उसको कटसी समझती थी, सी थॉट, एंड कॉज इनफ, और इतनी बात जो है, इतना कॉम्प्लीमेंट काफ़ी था, वो कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय. ये जो स्पॉट ऑफ जॉय उसके चेहरे पर पेंटिंग में आप देख पा रहे हैं, बस इतनी कटसी, इतना कॉम्प्लीमेंट काफ़ी था उसको खुश करने के लिए. नाउ मोर ही क्रिटिसाइजेज हर बाय सेइंग शी हैड अ हार्ट. हाउ सेल आई से, उसका दिल था, कैसे बोलूँ कैसा था. सी हैड अ हार्ट, हाउ सेल आई से, टू सून मेड ग्लैड, इतनी जल्दी खुश हो जाती थी, टू इजिली इम्प्रेस्ड, और तुरंत इम्प्रेस हो जाती थी. तो ही इज़ अ पर्सन of a very high rank, high class, and who believes that a person should not be glad at the small things. For being glad there must be the great occasion, or one must not be impressed with the little thing of the nature and little everyday things. So he has a complaint with his wife, and he says that she had a heart. My wife had a heart. How shall I say, कैसे बताऊँ, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on. वो जो देखती थी उसको पसंद आ जाता था. अब इसका कंप्लेन है कि इसकी वाइफ जो देखती थी उसको पसंद आ जाता था, वो चूजी नहीं थी. Too easily impressed. She liked whatever she looked on. जो देखती थी पसंद आ जाता था. एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और हर कहीं देखती थी. इसका मतलब, इसका कहना है, इसकी कंप्लेन है कि उसकी वाइफ हर कहीं देखती थी और उसको हर कुछ पसंद था. सर, दैट वॉज ऑल वन. उसके लिए हर बात बराबर थी. दैट वॉज ऑल वन. माई फेवर एट हर ब्रेस्ट. So what is my favor at her breast means he is giving her some costly necklace to wear. तो my favor at her breast. The dropping of the daylight in the west. अगर सनसेट देख लिया फिर भी खुश हो जाती थी. The dropping of the daylight in the west, तो ये क्या है, सनसेट. सनसेट देख के भी खुश हो जाती थी. The bough, टहनी, of the cherries, कोई चेरी की टहनी लेकर आ जाए. सम ऑफिशियस फूल, कोई मूर्ख, कोई ऑफिशियल फूल, कोई उसके लिए टहनी तोड़ के ले आए. ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर. ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा. बगीचे से कोई एक टहनी तोड़ के ले आए चेरी की, तो भी खुश हो जाती थी. द वाइट म्यूल, जो सफ़ेद घोड़ी जो है, शी रॉड अराउंड द टेरेस. जो सफ़ेद घोड़ी है जिसपे वो टेरेस के अराउंड मूव करती थी, उसमें भी उतनी खुश हो जाती थी. तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें जो है, अलग अलग चीज़ें हैं, वो बोल रही है कि वो किसी भी चीज़ से खुश हो जाती थी. उसके लिए सब बात एक बराबर थी. माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट इन द वेस्ट, द बॉ ऑफ चेरी, सम ऑफिशियस फूल ब्रॉक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, द वाइट म्यूल शी रॉड विथ अराउंड द टेरेस, ऑल एंड ईच, सब कुछ वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक एन अप्रूविंग स्पीच. कुछ भी हो जाए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी बात हो, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करती थी, और हर चीज़ को क्या देती थी, एक अप्रूविंग स्पीच देती थी. हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगा. और ब्लस एटलीस्ट, कम से कम शर्माती थी, कम से कम नॉड करती थी. अब इनकी कंप्लेन है, ड्यू की कंप्लेन है कि वो सबको बहुत ज़्यादा थैंक करती थी. और तो इसके लिए वो बोलते हैं, सी थैंक मैन, गुड. वो लोगों को थैंक यू बोलती थी, अच्छी बात है. बट थैंक समहाउ, आई नो नॉट हाउ. पर ऐसे थैंक बोलती थी, मुझे समझ नहीं आता कैसे थैंक बोलती थी. ऐसे एज इफ शी रैंक्ड माई 900 ईयर्स ओल्ड नेम, जैसे कि वो मेरे 900 ईयर्स ओल्ड पुराने नाम को विथ एनीबडीज गिफ्ट, वो उसके लिए मेरा 9 साल पुराना नाम, मतलब मेरा जो राजशाही नाम है, मेरा जो ख़ानदान है वो, और उससे अगर मैं कुछ उसको बड़ी चीज़ दे रहा हूँ वो, और कोई भी उसको छोटी सी चीज़ दे रहा है विथ एनीबडीज गिफ्ट, सब उसके लिए एक बराबर था. तो ही हैज़ अ कंप्लेन दैट उसकी वाइफ जो है वो नॉर्मल थी, कंडेंसेंसिंग थी, सबको थैंक करती थी.
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वो क्लास कॉन्शियस नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा क्लास रिजिडिटी में नहीं मानती थी और सबको शायद बराबर मानती थी, इसीलिए वो सबको क्या कर रही है, थैंक कर रही है, ब्यूटीफुली थैंक कर रही है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि ही हैज़ अ कंप्लेन, सी थैंक मैन, गुड, but thanks somehow, I don't know not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. अब यहाँ पर देखिए इनका डायबॉलिकल नेचर पता चलता है, जिसमें वो कहते हैं who would stoop to blame, who would stoop, कौन झुकता है to blame this sort of trifling, ये जो छोटी मोटी जो गड़बड़ी है इसको कौन झुक के करेक्ट करे। if you had the skill in speech which I have not, अब यहाँ पे यू कौन है, इमिशियरी, ठीक है, निकोलस मैट्रिज, और ये कहते हैं कि इवन इफ यू हैड अ स्किल इन स्पीच, अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए स्किल है, जो कि मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, टू मेक योर विल क्लियर टू सच अ एन वन एंड से, अपना जो इच्छा है, अपनी जो विल है, इच्छा जो है ऐसे इंसान को, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही इज़ यूजिंग सच अ वन, किसके लिए, अपनी एक्स वाइफ के लिए, लास्ट डिचेस के लिए, कि ऐसे इंसान को अगर आप बता भी सके कि मेरी इच्छा ये है, और क्या बोले, अभी देखिए वो अपना स्टेटमेंट अंडरलाइन करते हैं, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड मी, कि ये तुम्हारी बात मुझे डिस्कस करती है, ये मुझे बहुत घटिया लगती है, देयर यू मिस और एक्सीड द मार्क, यहाँ पर तुमने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया या ज़रूरत से कम बोल दिया, यू मिस द मार्क, ये काम तुम्हें करना चाहिए था जो तुमने नहीं किया, और देयर यू एक्सीड द मार्क, तुम मार्क मतलब लिमिट से ऊपर चल गई, यहाँ तुम लिमिट से कम हो, यहाँ से लिमिट से ऊपर चल गई। अगर ये बात मैं समझा सकूं, एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन, सो अगर वो सीखने के लिए तैयार भी हो, लेसन लेने के लिए तैयार भी हो, और नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर, और तुरंत जो है अपने विट को, तुम्हारे विट, अपनी बुद्धि से तुम्हारे बात का काउंटर एक्ट ना कर दे, एंड फोरसूथ, और तुरंत, एंड मेड एक्सक्यूज़, ठीक है, तुरंत तुम्हारे बात का कोई काउंटर रिप्लाई ना कर दे और कुछ एक्सक्यूज़ ना बना दे, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो फिर भी झुकना मुझे समझ में आता है कि मैं झुकूं और समझाऊं, लेकिन इन्होंने कभी अपने ड्यूचेस को ना कुछ बोला ना समझाया, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं कि आई चूज़ नेवर टू स्टूप, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं कभी नहीं झुकूंगा और अपनी ड्यूचेस को कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी कंप्लेन ये भी है कि इनको लगता है कि अगर वो अपनी वाइफ को समझाते भी कि देयर यू मिस द मार्क और यू एक्सीड द मार्क और दिस और दैट डिस्कस्ड इन मी, तो उसकी वाइफ जो है उसको तुरंत जवाब दे देती, वो उससे काउंटर आर्ग्यूमेंट करती, जो कि विटी होता, जो कि एक्सक्यूज़ दे सकती थी। तो इन्होंने बोला, ये इनका मानना है कि इसकी वाइफ इनको ऐसा एक्सक्यूज़ देती, इसीलिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये बोलते हैं सो आई चूज़ नेवर टू स्टूप, और मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी झुक कर कुछ बात समझाने वाला नहीं हूँ। अब ये बोलते हैं, अब इनको कंप्लेन है कि वो सबको देखकर हंसती थी, तो अब ये बोलते हैं, ओह सर सी स्माइल्ड, नो डाउट व्हेन एवर आई पास्ड हर, कोई डाउट नहीं है सर, व्हेन एवर आई पास थ्रू हर शी यूज्ड टू स्माइल, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, पर कौन पास करता था, हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, जिसको देखकर वो स्माइल नहीं करती थी, दिस ग्रू, ये बढ़ता रहा, क्या बढ़ता रहा, इसके वाइफ का सिंपल होना, सबका केयर करना, कंडसेंसिंग होना, अग्रीएबल होना, ये ग्रू करता रहा, एंड आई गव कमांड्स। अब देखिए, हियर it shows, the line shows that it was Ferrara who gave the command to murder his wife. When he says this grew, I gave commands. फिर मैंने ऑर्डर दिया, then all smiles stopped together, और सारी स्माइल जो है एक बार में रुक गई। इसका मतलब he gave the commands to kill her, और अब ये बोलते हैं there she stands as if alive, और अभी देखिए पिक्चर में खड़ी है जैसे जिंदा हो। तो इन्होंने पूरी की पूरी बात बोल दी, अपनी ड्यूचेस के पास्ट बिहेवियर को बता दिया, और हालांकि इस तरीके से बताया और इस बात में बताया जिसमें वो अपनी ड्यूचेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता लग गया कि हु इज़ देयर टू क्रिटिसाइज, एंड ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही लेट हिज वाइफ murdered, he ordered the murder of his wife, and now they were sitting and seeing the picture. Nicolas Madrid and the Duke of Ferrara were seeing the picture of the last Duchess. अब ड्यूक जो है अब बोलते हैं
निकोलस मैड्रियोस को, जो कि मिशनरी हैं, उसको बोलते हैं विल इट प्लीज़ यू राइज, अब उठना चाहेंगे यहाँ से, विल मीट द कंपनी बिलो, हम लोग नीचे जो कंपनी बैठी हुई है, कौन कंपनी है, इसकी न्यू वाइफ के रिश्तेदार जो आए हुए हैं बात करने के लिए, वो बोलते हैं वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, आई रिपीट। अब देखिए इससे हमें इसका पता, नेचर का पता चलेगा ड्यूक ऑफ फरारा का, वेयर ही सेज आई रिपीट द काउंट की बेटी का जो रिश्ता है, द काउंट योर मास्टर्स, जो कि तुम्हारे मास्टर हैं, नॉन मुनिफिसेंस का मतलब होता है दयालुता, काइंड हार्टेडनेस, बिग हार्ट, इज एम्पल वारंटी इनफ दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर द डाउरी विल बी डिसअलाउड, कि मेरा कोई भी प्रिटेंस जो है वो डाउरी के लिए डिसअलाउ नहीं किया जाएगा, दैट आई विल बी गिवन वट एवर द डाउरी आई आस्क, दो हिज फेयर डॉटर, हालांकि उनकी जो डॉटर है, अभी देखिए इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया डाउरी के बारे में कि मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है कि जो भी मैं डाउरी मांग रहा हूँ वो मुझे मना नहीं की जाएगी, मतलब डाउरी जो है इनके लिए इम्पॉर्टेंट बात है। ही ऑलरेडी हैज़ मैंसनड, ही फर्स्ट मैंसन दैट वट एवर द डाउरी ही आस्क ही विल नॉट बी रिफ्यूज्ड, सो it itself is a warranty that he is more after the dowry than the girl, but यहाँ पर पहले ये बोलते हैं कि dowry is important, dowry is not important and whatever he asks for the dowry will not be disallowed। अभी लेकिन वो मेंशन करते हैं दो his fair daughter's self, हालांकि उनकी जो अच्छी डॉटर है, एज ए अवार्ड, जो मैंने ऑलरेडी बोला है एट द स्टार्टिंग, इज़ माई ऑब्जेक्ट, उनकी डॉटर मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा प्राइम ऑब्जेक्ट उनकी डॉटर है और दहेज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरा जो दहेज का जो डिमांड है वो डिसअलाउ नहीं किया जाएगा, एंड दिस स्टेटमेंट इज इट सेल्फ इनफ टू शो दैट ही इज़ मोर आफ्टर द डाउरी दैन द डॉटर। ने विल गो टुगेदर डाउन सर, चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। अब देखिए जाते जाते अगेन पहले उन्होंने ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया था विद फ्रा पेंडलॉफ, दैट वाज फिक्शनल कैरेक्टर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड नाउ वी विल अगेन क्रिएट द सेकंड ब्रांड वैल्यू ऑफ हिमसेल्फ, एंड he says notice Neptune. So what is Neptune? There are you must have seen the picture जिसमें सी के ऊपर जो है वो राइडिंग हॉर्सेस रहते हैं और नेपच्यून उसको टेम कर रहे होते हैं, तो वो वाला है। तो ये बोलते हैं पिक्चर नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स, जो कि सी हॉर्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। थॉट अ रेयरिटी, ये इस पिक्चर को रेयर माना जाता है, विच क्लाउज ऑफ इंसब्रुक, अगेन Klaus of Innsbruck is a sculptor and this is also a fictional sculptor. Cast in bronze for me, इन्होंने ब्रॉन्ज में मेरे लिए कास्ट करके स्कल्प्ट करके दिया है। तो दिस इज द पोएम माई लास्ट ड्यूचेस। सो लेट्स रीड दिस पोएम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। माई लास्ट ड्यूचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। Epigraph is Ferrara and it shows that the speaker is the Duke of Ferrara. That's my last duchess painted on the wall. ये मेरी लास्ट डचेस है जिसका पेंटिंग दीवार पे है। Looking as she were alive, ऐसे दिख रही है जैसे वो जिंदा हो। I call that piece a wonder now. अब मैं इस पीस ऑफ पेंटिंग को वंडर बोलता हूँ, आश्चर्य बोलता हूँ। फ्रा पेंडलॉफ्स हैंड्स वर्क बिजिली अ डे। फ्रा पेंडलॉफ जो पेंटर हैं उन्होंने दिन भर मेहनत की, बिजली मेहनत की। एंड देयर शी स्टैंड्स, और यहाँ पर इनकी पेंटिंग खड़ी है। विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, सर आप यहाँ पर बैठ के इसकी पेंटिंग देखना चाहेंगे। आई सेट फ्रा पेंडलॉफ बाय डिज़ाइन, मैंने जानबूझ के फ्रा पेंडलॉफ का नाम लिया है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, क्योंकि आपके जैसे स्ट्रेंजर जो हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं दैट पिक्चर काउंटेनेंस, उस पिक्चर का जो चेहरा है उसका एक्सप्रेशन आप नहीं पढ़ सकते हैं। द डेप्थ एंड द पैशन ऑफ इस अर्नेस्ट ग्लेंस, इसके जो अर्नेस्ट ग्लांस है उसमें जो डेप्थ है, जो पैशन है, वो क्यों है, कैसे आई है, वो आप नहीं पढ़ सकते। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, जो देखने वाले होते हैं वो मेरी तरफ टर्न करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सिंस नन पुट बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, क्योंकि ये जो पर्दा मैंने लगा के रखा है ड्यूचेस के पेंटिंग के ऊपर वो मेरे अलावा कोई भी हटा नहीं सकता है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे डस्ट, और जो विजिटर्स हैं जो पिक्चर देखने वाले हैं अगर इफ़ दे डस्ट उनकी हिम्मत हो तो वो मेरे से पूछेंगे हाउ सच अ ग्लांस केम देयर, ऐसा ग्लांस, ऐसी छवि, ऐसा नज़र कैसे आया। सो नॉट द फर्स्ट यू आर टू टर्न एंड आस्क दस सर, तो आप पहले नहीं हैं ये बात पूछने वाले सर।
अब ये एक्सप्लेन करता है दैट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, ये उनका सिर्फ हस्बैंड का प्रेजेंस नहीं है, कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द ड्यूचस चीक, जो जिसके कारण ड्यूचस के चीक पर ऐसा एक्सप्रेशन आया है। परहैप्स फ्रा पेंडलॉफ चांस टू से, हो सकता है पेंटिंग बनाते बनाते फ्रा पेंडलॉफ ने बोल दिया होगा, क्या बोल दिया होगा कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि लेडी का जो मेंडल है, हेड गियर है, वो रिस्ट पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट, और पेंट जो है शायद कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है वो हाफ फ्लश जो कि मेरी लेडी जो है उसके थ्रॉट पर दिख रहा है। सच स्टफ वॉज कटसी, सर ऐसी बातें बोलना मेरी ड्यूचस के लिए कटसी की बात थी, सी थॉट, उसको लगता था, एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग ऑफ दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और वो जो स्पॉट ऑफ जॉय उसके चेहरे पर है उसको लाने के लिए इतनी बात काफ़ी थी। शी हैड हार्ट, हाउ सेल आई से, उसका दिल था, मैं कैसे बोलूँ कैसा दिल था। टू सून मेड ग्लैड, इतने जल्दी खुश हो जाती थी, टू इजिली इम्प्रेस्ड, और इतनी जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। सी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जो देखती थी सब उसको पसंद आ जाता था, एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और वो हर कहीं देखती थी। सर दैट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब बात एक जैसी थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, अगर मैंने उसको कोई नेकलेस ला के दिया है, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट मतलब सनसेट इन द वेस्ट, द बो ऑफ चेरीज, जो चेरीज की टहनी है, सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, ऑर्चर्ड में गार्डन में इसको कोई ऑफिशियस फूल एक चेरी का टहनी भी तोड़ दे, वो भी उसके लिए एक ही बात बराबर थी। द वाइट म्यूल सी रॉड ऑन अराउंड द टेरेस, वो सफ़ेद घोड़ी जिसके अराउंड वो टेरेस पे राउंड लगाती थी, वो सब उसके लिए एक बराबर थी। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक एन अप्रूविंग स्पीच, हर बात के लिए वो अप्रूविंग स्पीच देती थी, और ब्लस एटलीस्ट कम से कम शर्मा जाती थी। सी थैंक मैन गुड, वो सबको थैंक करती थी, अच्छी बात है थैंक करना, बट थैंक सम हाउ आई नो नॉट हाउ, पर ऐसे थैंक करती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे थैंक करती थी। एज इफ शी रैंक माई गिफ्ट ऑफ 100 years ओल्ड नेम, जैसे कि वो मेरा 900 साल पुराना जो खानदानी नाम है उसको किसके साथ इक्वल करती हो, विथ एनी बडीज गिफ्ट, वो किसी भी गिफ्ट के साथ वो इक्वल करती हो। हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइफलिंग, ठीक है अब कौन झुके इतनी छोटी मोटी बात को बताने के लिए। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर आपके पास स्पीच का स्किल है भी, विच आई हैव नॉट, जो कि मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच ए वन, कि ऐसे इंसान को आप अपनी इच्छा बता पाएँ और बोले, एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, कि तुम्हारी ये बात और वो बात जो है मुझे डिस्गस्टिंग फील, मुझे घटिया फील कराती है। यू हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, यहाँ पर तुम लिमिट्स को मिस कर गई और यहाँ लिमिट से ज़्यादा हो गई। एंड इफ़ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, और अगर वो खुद को लेसन करने दे, खुद को सीखने भी दे, वो तैयार हो सीखने के लिए। नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर, प्लेनली वो तुरंत आपको काउंटर जवाब ना करते, मेड एक्सक्यूज़, कोई बहाना बनाना दे, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो फिर भी होगा कि चलो कुछ झुक करके बताते हैं। आई चूज़ नेवर टू स्टूप, और मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी झुकूंगा नहीं। ओ सर सी स्माइल्ड, ओ सर वो स्माइल करती थी, नो डाउट वेन एवर आई पास्ट हर, जब भी मैं पास करता था उसके पास से वो स्माइल करती थी। बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन कौन पास करता था जिसको देखकर वो स्माइल नहीं करती थी। दिस ग्रू, ये बढ़ता रहा। आई गेव कमांड्स, मैंने कमांड दिया, ऑर्डर दिया। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, और सारी स्माइल जो एक बार में रुक गई। इट मीन्स इसने ऑर्डर दिया उसको मारने का। देयर सी स्टैंड्स एज एफ अलाइव, अभी यहाँ पे पेंटिंग में खड़ी है जैसे जिंदा हो। अभी ये इमिशरी को सारी बात डिस्कस कर रहे थे, अब बोलते हैं कि विल इट प्लीज यू राइज, आप अब खड़े होंगे। विल मीट द कंपनी बिलो, हम लोग नीचे जो कंपनी बैठी हुई है, कौन, जो नेक्स्ट इसकी जो ड्यूचेस है, प्रॉस्पेक्टेड ब्राइड जो है, उसकी फैमिली आई हुई है, बोली चले उससे जाके मिलते हैं। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स, मैं रिपीट करता हूँ कि काउंट जो है तुम्हारे जो मालिक है, जिसकी बेटी का रिश्ता आया है, नॉन मुनिफिसेंस, उनका जो बिग हार्ट है वो जो है, इज एम्पल वारंट, वो काफ़ी वारंटी है, दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डॉरी विल बी डिसअलाउड, कि मैं कुछ भी डॉरी मांगूंगा तो वो डिसअलाउ नहीं होगा। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, हालांकि उसकी जो डॉटर है, एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग, जैसे मैंने कसम खाया है स्टार्टिंग में ही, इज़ माई ऑब्जेक्ट, वो मेरी प्राइम ऑब्जेक्ट है। नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर, अब हम लोग सर नीचे चलते हैं। और जाते जाते अगेन वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं विद अनदर स्कल्प्टर, जो कि अनदर फिक्शनल करेक्टर क्लाउस ऑफ इंसब्रुक ने बनाया है। तो नोटिस नेपच्यून दो, टेमिंग अ सी हॉर्स, दो अ रैरिटी, ये एक रेयर पिक्चर पीस ऑफ आर्ट है, विच क्लाउस ऑफ इंसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जो उन्होंने ब्रॉन्ज में मेरे लिए कास्ट करके दिया है। सो दिस इज़ अ पोएम माई लास्ट टचेस। इस पार्ट में हम लोगों ने पोएम को रीड किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी समरी को एक बार देखेंगे।
सो अगर व्हेन यू वांट टू सी द अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड बेटर तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लेंगे. ओके, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर लाइफ्स.